Like, you know what is current, what is potential difference, what will happen when potential difference is applied to a conductor. You know what is Ohm's law, right? Yes, sir. Obviously, if I start with current electricity, things will be very clear to you because you know the basics of it. So we will start with the basics, right? I will not start the chapter. First, we'll start with the basics. Then one by one, we will, you will deal with all the concepts which you have learned in 10th standard. Then we'll move towards 11th standard portion. Is it okay? Yes, sir. Fine. So as I told, we will be doing, starting with the chapter that is current electricity. So when it comes to current electricity, first you should know every substance, like if I consider any substance, how it is made, what we have inside the, material, right? You have to discuss everything. Then we will move towards the free electron concept. Okay, fine. So if I consider any substance, it can be anything, bacha. Can you tell me every substance, it is made up of what, bacha? Matter. Matter. Substance and matter, obviously, it is going to be the same. Now, matter and substance, they are made up of Atom. atom. Very good. So obviously, every substance, they are made up of basic element, that is atom. Right? Yes, sir. Now, we also know that atom, of course, scientists initially they told it is indivisible. But after some time, sometime many scientists they discovered inside the atom, we have got subparticles also. We have got small elements, right? So can you tell me, atom, it is made up of? Electrons, protons, and neutrons. Exactly. It is going to be made up of electron, electrons, and protons and neutrons. And of course, protons and neutrons, they are inside nucleus, right? So it means atom, it is made up of nucleus and electron. Is it okay? Yes, sir. Now this electron, it is very light in weight, and nucleus, it is very dense. So since nucleus is dense, it is situated at the center of atom, and this is light in weight. So Hello, this is sir. Hello. Yes. सर अक्षर थोडं मोठं करता का स्पेलिंग? Yes, yes. Up to this much, is it clear? Atom दिख रहा है आपको? Yes, sir. Okay, fine. But this is made up of nucleus and electron. Is it okay now? Yes, sir. Fine. But this nucleus, as I told, it is very dense. So it is dense, and this is light in weight. So it is light. Now nucleus, since it is dense, it is dense, it is situated at the center of atom, and the electrons, they are light in weight, so they are going to revolve around the nucleus in its own atomic orbit. I repeat, nucleus is very dense, therefore it is situated at the center of atom. Electron, it is light in weight, therefore it will revolve around the nucleus in its own atomic orbit. Is it okay? Yes, sir. But now nucleus, it is made up of nucleons. It is made up of nucleons, right? Now in nucleons, we have got two types. We are going to have two types. Obviously, as you told, one is proton and another, it is going to be neutron. One is proton and another, it is going to be neutron. Is it okay, bacha? Yes, sir. Now we will talk about first proton. But a proton, it is very heavy, right? You have to remember that it is very heavy. In fact, neutron also, it is heavy. Now, when it comes to the charge on proton, it is going to be positive. What is the charge, bacha? Positive. Positive. Right?
and the value of one proton is plus 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. This value you have to remember. Is it okay? Yes, sir. Then the mass Yes, of the sir. proton, it is 1.6725 into 10 raised to minus 27 kg. Right? Usually we take 1.67, but the precise value is 1.6725 into 10 raised to minus 27 kg. I hope everybody followed up to this much, right? Yes, sir. But a neutron, we all know the charge on neutron. If I take N, of course I will take P here. Here I will take MP, that is mass of the proton. Now charge on neutron, everybody knows it is neutral in nature, right? So the charge will be 0. But the mass of the neutron, it is mass of the neutron, it is very much same of that of proton, but it is little more than the proton, right? So the value is 1.6749 into 10 raised to minus 27 kg. Is it okay, bacha? So ultimately Yes, sir. 1.67, it is the same. Here we have got 25, here you got a 49. So little more than the proton. Is it okay? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. Now very important point, bacha. See, inside the nucleus, we have got nucleons. Nucleons had got two types. One is proton, another is neutron. The charge on proton is positive and the charge on neutron is neutral. There is no charge. So tell me, what will be the charge on nucleus? Positive. Exactly. Because inside this we have these two. This is neutral. This is positive. So ultimately this will be positive. Yes or no? Yes, sir. So the charge on nucleus, you should understand it is going to be positive. It is positively charged. Right? Now, electron, as far as electron is concerned, here the charge on electron, it is exactly same as proton, but opposite in nature. If proton is positive, this is negative. That is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. It means definitely I can write magnitude of charge on electron is exactly equal to the magnitude of charge on proton. That will be equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, which we do always take it as E. E is the charge on electron as well as proton in magnitude. That is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Is it okay? Yes, sir. Now mass. Anybody knows the mass of Yes, electron, sir. bacha? What is the mass of electron? It is 9.11 into 10 raised to minus 31 kg. 1. Minus 31 kg. Is it okay? Yes, sir. So if I compare the mass of proton and electron, it is assumed that the mass of proton, it is 1890 times the mass of electron. So approximately you can take mass of proton is equivalent to 2000 times of electron. Is it okay? Yes, sir. But the charge is same, but mass, there is huge difference. Proton is very dense, right, compared to electron. Now tell me, bacha, what is the charge on electron? Negative? Negative. Exactly, it is negative. So here it is positive. Now tell me, nucleus is positive, electron is negative. Now what will be the charge on atom? Neutral. Very good, bacha. This is very important. It is neutral, right? Now you know the reason, because inside the atom, the number of electrons and the number of protons will be the same. If number of electrons and the number of proton are same, so ultimately the net charge on the atom will be 0. You agree with me? Yes, sir. So I will write it as concept number 1. Concept number 1.
every atom is what? Neutral in nature? Is neutral in nature, right? Now the question is why they are neutral in nature? Because inside the atom, number of electrons is equal to the number of protons. So in other words, you can just write Ne is equal to Np. If Ne is equal to Np, obviously net charge will be 0. Is it okay, but everybody followed up to this much? Yes, sir. Any confusion? No, sir. Okay, so you can complete this, and obviously you should know all these values. हेलो सर, हो गया कंप्लीट? हो गया बच्चा कंप्लीट सबका? Yes, sir. Should I rub the board? Yes, sir. यस Okay, सर. fine. ठीक है. So on the basis of this, obviously we'll get into structure of atom. बच्चे घर पे जो करंट पास करने के लिए जो वायर यूज करते हैं, कौन सा मटेरियल से बनता है बच्चों? कॉपर और एल्यूमिनियम। कॉपर. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहेगा बच्चा? कॉपर, राइट? So we'll get into structure of atom. Okay. So when it comes to structure of atom, so obviously atom है, तो अभी obviously उसमें orbits होगा, right? atom है, तो obviously उसमें nucleus तो center में होगा. Then you're going to have orbits, right? Right बच्चा? यस सर। बच्चे ये जो ऑर्बिट्स को हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करें. एक होगा इनर ऑर्बिट्स, एक होगा इनर ऑर्बिट्स, एंड दूसरा होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट. तो ऑब्वियसली आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो एक ही होगा. तो सोच के बताओ बच्चा, इनर ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस को क्लोज होगा या दूर होगा? Close. Close होगा. So can I say the distance is less here? यस सर। डिस्टेंस इज लेस हियर. तो डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो रहेगा ना बच्चा, ज्यादा रहेगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस ज्यादा होगा, जिसका वजह से फोर्स ज्यादा है. सो जितना भी इलेक्ट्रॉन्स इनर ऑर्बिट्स में है, दे आर स्ट्रांगली बाउंड टू द न्यूक्लियस. दे आर स्ट्रांगली बाउंड टू न्यूक्लियस, राइट?
बट आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है ऑब्वियसली आर ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा, तो फोर्स कम रहेगा। तो इसका मतलब इधर ये वीकली बॉन्ड होगा। मतलब आप चाहे तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं क्योंकि इनका इंटरैक्शन वीक है। यू एग्री विद मी? Yes, sir. Yes, sir. फाइन, चलो मैं आप कॉपर बोला तो मैं कॉपर का ही कंसिडरेशन करूंगा। तो बताइए कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है? 6. सोच के बताना। कॉपर है, कॉपर। एनीबॉडी नोस व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर? बट इट इज 29। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में ऑब्वियसली 8 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट आता है 18, बराबर है ना बच्चा? एंड लास्ट में आता है 1। लास्ट में कितना है बच्चा? 1। इज इट ओके? अच्छा, आपको आंसर करना पड़ेगा। इज इट सर ओके? मगर हेलो सर, हाँ हाँ हाँ, बोलो। सर वो 288 लिखते हैं ना, आप डायरेक्ट 18 लिखिए इसको। बच्चा 2 8 देन 18 देन 1 है ना? हाँ सर, रिमेनिंग बने बस। हाँ, तो सो ये जो है 3 ऑर्बिट्स, ये बनेगा इनर ऑर्बिट्स, राइट? एंड ये एक जो है एक, ये बनेगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट, मानते हो बच्चा? यस सर। Yes, तो sir. इसके हिसाब से मैंने सपोज स्ट्रक्चर बनाया तो ऐसा ही टोल्ड, सेंटर में तो न्यूक्लियस बनता है, तो न्यूक्लियस रहने देते हैं हम लोग। सेंटर में न्यूक्लियस है जो पॉजिटिव है। देन हमारे पास अभी कितना ऑर्बिट होगा? 1 2 3 4। ऑब्वियसली बाद में शेल्स का सब आता है, वो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, सो ऑब्वियसली उतना डिटेल में तो नहीं जाऊंगा मैं, बट वी विल डील विद 4 ऑर्बिट्स नाउ, राइट? ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, देन आता है सेकंड ऑर्बिट, एंड ये थर्ड ऑर्बिट, देन आता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इज इट ओके? ऑब्वियसली ऑर्बिट्स इतना क्लोज नहीं होता है, फर्स्ट और सेकंड का डिस्टेंस जो है उससे ज्यादा सेकंड और थर्ड का होगा, सेकंड और थर्ड का जो डिस्टेंस उससे भी ज्यादा थर्ड और फोर्थ का होगा। सो अल्टीमेटली बड़ा डायग्राम बनेगा। इज इट ओके? यस सर। Yes, बच्चा sir. इधर इधर जैसा मैंने बोला 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर हम लोग को पता है यू आर गोइंग टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, and obviously here you are going to have 18. Is it okay? यस सर। And इधर sir. एक ही इलेक्ट्रॉन है बच्चा, एक ही, राइट? तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऑब्वियसली आपको इतना तो समझ में आता रहेगा कि ये जो इनर ऑर्बिट्स का इलेक्ट्रॉन है दे आर वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। बच्चा मैंने फिर से बताया कि डायग्राम में जो दिख रहा है वो सिचुएशन नहीं है क्योंकि ये बहुत दूर है। मतलब डायग्राम ऐसा बनता है, एक्चुअली ऐसा बनता है। आई होप यू गेटिंग। तो डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते जाता है, राइट? तो स्पेस कम है, समझ में आ रहा है ना बच्चा? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. बच्चा ये न्यूक्लियस है तो फिर फर्स्ट ऑर्बिट है, तो ये सेकंड, देन थर्ड वाला बड़ा, फोर्थ वाला और बड़ा। तो अल्टीमेटली ऑर्बिट का बीच में जो डिस्टेंस इधर तो सेम दिख रहा है बट एक्चुअली नहीं है वैसा, राइट? Yes, sir. Yes, तो ये sir. डिस्टेंस ऑब्वियसली इधर कम है तो फोर्स ज्यादा होगा, राइट? अभी ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैं दूसरा साइड पे लेता हूं तो मेरे को डिस्टेंस बताना इजी है। ठीक है, तो इधर डाल दो। फाइन। तो अभी ये जो है बच्चा ऑब्वियसली डायग्राम में पता चल रहा है कि डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम हो। बच्चा क्लियर? इधर तक समझ में आया? यस सर। Yes, Yes, sir. ठीक sir. है।
अभी Yes, sir. कॉन्सेप्ट का बात करते थे। तो चलो ये एटम का सिचुएशन ऐसा है। सो इनफैक्ट इनर ऑर्बिट्स जो है ना, इनर ऑर्बिट्स प्लस न्यूक्लियस, ये स्ट्रांगली बाउंड टू द न्यूक्लियस है। इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो इनर ऑर्बिट्स में है इसको निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसके लिए जो इनर ऑर्बिट्स प्लस न्यूक्लियस है, मतलब देखो इतना रीजन जो मैं डॉटेड में बना रहा हूं, तो इसको हम लोग एटम का जो है इनर ऑर्बिट्स प्लस न्यूक्लियस, इसको कोर ऑफ एटम बोलते हैं, कोर ऑफ एटम। एंड कोर ऑफ एटम में ऑब्वियसली क्या होगा, न्यूक्लियस प्लस इनर ऑर्बिट्स होगा। राइट बच्चा? Yes, sir. प्लस इनर ऑर्बिट्स होगा। आई होप यू गेटिंग। Yes, sir. inner orbits. So nucleus plus inner orbits will be referred as core of atom, right? Fine. चलो इधर तक Yes, तो sir. सबको समझ में आ गया। अभी बच्चे ये एटम सपोज मैंने किधर भी रख दिया, सराउंडिंग में किधर भी एक रूम में रख दिया। अभी एटम का कुछ टेम्परेचर होगा और सराउंडिंग का कुछ टेम्परेचर होगा। सपोज सराउंडिंग का टेम्परेचर एटम का टेम्परेचर से ज्यादा है, तो समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूं बच्चा? एटम का बाहर जो भी है उसको सराउंडिंग बोलेंगे। इज इट ओके? Yes, sir. अभी सराउंडिंग का Yes, जो sir. टेम्परेचर है बच्चा वो ज्यादा है या एटम से ज्यादा है, राइट? तो क्या होगा बताओ? एटम सराउंडिंग से हीट एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, मानते हो? हाँ सर। मतलब एटम विल ऑब्जर्व हीट एनर्जी, हीट एनर्जी को थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं, फ्रॉम द सराउंडिंग, राइट? अब ये हीट एनर्जी जो ऑब्जर्व किया जाएगा फ्रॉम द सराउंडिंग, इट विल बी यूज्ड इन टू वेज, राइट? एक पहला क्या करेगा, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको पहला यूज करेगा, राइट? इन अदर वर्ड्स मैं ऐसा लिखता हूं, हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, हीट एनर्जी of course from the surrounding will be used in two ways. One, first it will be used by the outermost orbit का electron. बच्चा outermost orbit को क्या बोलते हैं, याद है? Valence electron. Valence. Very good बच्चा, वैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं, वैलेंस ऑर्बिट, बराबर है? हाँ सर। हाँ, और ये इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्वियसली हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ओके, so heat energy first it will be used by valence electrons, पहला यूज करेगा। एंड वैलेक्टर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चा, ये एनर्जी लेके, हीट एनर्जी लेके एटम में से बाहर आ जाएगा, राइट? इट विल कम आउट ऑफ द एटम, राइट? एंड इट विल बिकम फ्री। एटम से बाहर आया तो ऑब्वियसली फ्री होगा ना, ये बाहर आ गया, देखो ऐसे इधर, मतलब एटम से बाहर है बट कंडक्टर से बाहर नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, अभी वो कंडक्टर के अंदर किधर भी जा सकता है, इसके लिए इसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? फ्री इलेक्ट्रॉन। और यही इलेक्ट्रॉन करंट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, इसके लिए इसको हम लोग कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन सेम है। तो ऐसे ही टोल्ड, हीट एनर्जी पहला कौन यूज करता है बच्चा? इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे है वो यूज करेगा, एंड उसको लेके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन। बच्चा फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बच्चा अंदर के इलेक्ट्रॉन का बात नहीं हो रहा है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आके फ्री हो जाएगा। उसका बाद क्या होगा बच्चा? एटम खुद यूज करेगा उसको, राइट? एटम will using this energy it will perform thermal vibration, मतलब वाइब्रेशन शुरू करेगा, राइट? वो किससे? जो बचा एनर्जी पहला ये यूज करेगा, उसके बाद जो भी बचेगा वो एटम यूज करेगा, जिसकी वजह से वो थर्मल वाइब्रेशन करता है। इज इट ओके? हाँ सर। मतलब इतना तो पक्का है। सपोज आपके पास इलेक्ट्रॉन, मतलब बेसिकली मैं किसको डिनोट कर रहा हूं बच्चा? मैं कंडक्टर्स का बात कर रहा हूं। किसका?
क्योंकि इंसुलेटर में ऑब्वियसली फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है, राइट? राइट बच्चा? यस सर। Yes, sir. तो यस सर। मतलब इतना तो क्लियरली समझ में आएगा कि हर एक एटम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है? क्योंकि वो हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, किधर से? सराउंडिंग से। इज इट ओके? यस सर। तो Yes. Yes, sir. I'll write it as concept number 2. Concept number 1 क्या था बच्चा? Concept number 1, हर एक एटम न्यूट्रल है। क्या है? Atom neutral है। एटम हर एक न्यूट्रल है। एटम न्यूट्रल है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये है, atoms will have free electrons, will have free electrons since they absorb heat energy from surrounding. Heat energy ब्रैकेट में चाहे तो थर्मल एनर्जी लिखो, एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। अच्छा क्लियर है? मतलब ये एटम जो बात कर रहा हूं ऑब्वियसली कंडक्टर्स का बात कर रहा हूं। आई होप यू गेटिंग, आई होप यू गेटिंग। Yes, yes, sir. यस सर। यस सर। बच्चा दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया? दोनों फर्स्ट नंबर कॉन्सेप्ट नंबर 1 एंड कॉन्सेप्ट नंबर 2, इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. फाइन बच्चा, इसको कंप्लीट करो, देन विल मूव टुवर्ड्स कॉन्सेप्ट नंबर 3।
लिख के हो गया। हो गया सबका, हो गया बच्चा? Yes, sir. हाँ सर। Everybody finished? Yes sir. Sir, 2 minutes. Yeah. Done, sir. Okay. Fine then. So अभी बात करेंगे हम लोग, मतलब ये तो पता चला गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएगा। अभी एटम में जो थर्मल वाइब्रेशन है उसको थोड़ा बात करेंगे हम लोग, राइट? क्योंकि इतना पता है कि एटम वाइब्रेट करता है। रब करूं? Yes, sir. ओके फाइन। Fine. So next is thermal vibration of atom. So when it comes to thermal vibration, मान लो कंडक्टर का अंदर ये जो लाइन है ये एटम का ओरिजिनल पोजीशन को बताता है। दिस इज गोइंग टू बी द सिचुएशन ऑफ एटम। एंड जो उसका ओरिजिनल जो पोजीशन है उसको हम लोग मीन पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? मीन पोजीशन बोलते हैं, नहीं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं। What we call mean position or equilibrium position, right? Yes sir. Yes, sir. हाँ। अभी क्या करेगा बच्चा? ये हीट एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, उसका बाद जो भी एनर्जी बाकी है उससे जो एटम है वाइब्रेट करेगा, मतलब ऊपर नीचे ऐसा, राइट? सो वाइब्रेशन शुरू करेगा। इनफैक्ट इट मूव्स इन दिस वे, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, देन नीचे जाके ऊपर आएगा। सो बेसिकली दिस इज वन वाइब्रेशन और वो चलते रहेगा। अभी मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहेगा उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, एंड दैट ए विल बी रेफर्ड एज एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं बच्चे उसको? एम्पलीट्यूड। ऑब्वियसली जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे जाएगा, राइट? इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। सो आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। Yes, sir. सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, the maximum displacement of atom from mean position is called amplitude of vibration. And of course a amplitude of vibration जो है इसको हम लोग A रेफर करते हैं, राइट? देन ऊपर जाके मीन पे आके नीचे जाके ऊपर आया तो एक वाइब्रेशन होता है, एक ऑसिलेशन होता है, जिसके लिए जितना भी टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट one vibration or oscillation, you say to and fro ऐसा, one vibration is called time period, right? तो ये time period को हम लोग T लेंगे। बच्चे ये क्लियर है सेकंड पॉइंट? Yes, sir. Yes sir. हाँ। अभी क्या है बच्चे, देखो एकदम इंपॉर्टेंट रिलेशन बता रहा हूं। सपोज ये टेम्परेचर कम है, राइट? टेम्परेचर कम है तो ये एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन भी कम रहता है। मतलब टेम्परेचर कम है तो एम्पलीट्यूड भी कम, ऊपर देन मीन देन नीचे देन मीन, राइट? दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। बट टेम्परेचर हम लोग ने बढ़ाया तो वाइब्रेशन बड़ा होगा, राइट? Yes, sir. Yes sir.
मतलब वाइब्रेशन कम है, आई मीन टेम्परेचर कम है तो एम्पलीट्यूड कम होगा, बट टेम्परेचर ज्यादा है तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। बट स्पीड ऑफ वाइब्रेशन जो है, स्पीड ऑफ वाइब्रेशन मानते हो ना, स्पीड ऑफ वाइब्रेशन वो भी हाँ। चेंज होता है, राइट? हाँ Yes, sir. मतलब बच्चा Yes, sir. ऐसा ऐसा बताता हूं, देखो, फॉर ए गिवन मटेरियल या सब्सटेंस, द टाइम पीरियड always remains constant. Time period remains constant, remains constant at any temperature, at any given temperature. मतलब टेम्परेचर कुछ भी होने दो, टाइम पीरियड हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग है, बट फॉर ए गिवन मटेरियल वो कांस्टेंट है, remains constant at given, at any given temperature, given temperature। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझ के लो। मतलब एटम, मैंने बोला टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर as I told it is directly proportional to amplitude, ऐसा उल्टा लिख दो, that is better। so speed of vibration जो है, speed of vibration obviously it is directly proportional to amplitude होगा, and amplitude is directly proportional to temperature होगा। मतलब सपोज टेम्परेचर कम है तो एम्पलीट्यूड भी कम होगा, देन स्पीड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो भी कम होगा। बट ये जो टाइम पीरियड का बात हो रहा है, टाइम, तो ये टी को मैं टेम्परेचर को टाइम पीरियड सेम है तो आई विल टेक टी डैश। बच्चे ये टी डैश टेम्परेचर है, याद रखना, टी डैश टेम्परेचर है। इज इट ओके? Yes, Yes, sir. sir. ये जो टाइम पीरियड बच्चे कांस्टेंट रहेगा, मतलब अभी सिचुएशन ये है टेम्परेचर कम है तो एम्पलीट्यूड कम, तो एम्पलीट्यूड कम है तो एटम को ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करना है तो वो स्लोली ऊपर नीचे जाएगा। एंड कितना टाइम लेगा एक ऑसिलेशन के लिए? टी लेगा। ऑन द अदर हैंड सपोज मैंने टी को बढ़ाया, आई मीन टी डैश को बढ़ाया, तो एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ वाइब्रेशन भी बढ़ेगा, तो इसका मतलब अभी भी टी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। आई होप यू गेटिंग Yes, sir. राइट। अभी क्या होगा बच्चा, टेम्परेचर बढ़ गया तो एटम का एम्पलीट्यूड बढ़ गया ना, उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो उसके लिए वो स्पीड बढ़ाएगा, स्पीड, बट टाइम जो है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यू आर गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. So for a given material at any temperature, टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा, देन टेम्परेचर का साथ एम्पलीट्यूड और स्पीड ऑफ वाइब्रेशन चेंज होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, स्पीड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर कम हुआ तो एम्पलीट्यूड कम होगा, स्पीड ऑफ वाइब्रेशन भी कम होगा। इज इट ओके? Yes, sir. फाइन, कंप्लीट कर लो बच्चा। Yes, sir. बच्चा आपने ये तो देखा होगा ना, कभी मेटल को हम लोग हीट किया तो क्या होता है? एक्सपांड होता है कि नहीं होता है वो? होता है sir. होता है उसको सर। हम लोग उसको हम लोग थर्मल एक्सपांशन बोलते हैं। अभी थर्मल एक्सपांशन का रीजन क्या है? थर्मल वाइब्रेशन है, क्योंकि जब एटम वाइब्रेट करेगा अंदर तो एटम और एटम के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? दोनों, जितना भी एटम है वाइब्रेट करेगा तो डिस्टेंस बिटवीन द एटम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बच्चा बढ़ेगा ना? हाँ सर। बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो अल्टीमेटली सब्सटेंस का मास, आई मीन द वॉल्यूम भी क्या होगा बच्चा? बढ़ेगा, राइट? हाँ सर। Yes, sir. मतलब थर्मल वाइब्रेशन जो है, इट इज द मेन कॉज ऑफ थर्मल एक्सपांशन। मतलब सॉलिड को आप जब हीट करते हैं तो एक्सपांड होता है, तो ये थर्मल वाइब्रेशन की वजह से होता है।
बच्चा डन? बच्चा फिनिश? Yes, sir. व्हाट अबाउट अदर? Yes, sir. सबको हो गया बच्चा? अभी आप बोलेंगे इसमें Yes. कॉन्सेप्ट क्या है? ऑब्वियसली यही कॉन्सेप्ट है इसमें. कॉन्सेप्ट नंबर 3, speed of vibration is directly proportional to amplitude and amplitude is directly proportional to temperature, but time period will remain constant. Right? Yes, sir. रब कर दूं बच्चा? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. फाइन देन. सो सबका हो गया तो रब कर रहा हूं मैं. सो अभी जितना भी हम लोग ने कॉन्सेप्ट पढ़ा तो उसके हिसाब से हम लोग एक सॉलिड मेटालिक कंडक्टर कंसीडर करेंगे. सॉलिड मेटालिक कंडक्टर कंसीडर करेंगे. ओके. कंसीडर a solid metallic conductor. फाइन. बच्चे सॉलिड मेटालिक कंडक्टर ऑब्वियसली कॉपर हो सकता है, एनीथिंग जो मेटालिक होना जरूरी है. राइट? सो इसका जो वॉल्यूम है ना बच्चा, वॉल्यूम, वी फॉर वॉल्यूम है. सो 1 cc है. क्या होता है बच्चा 1 cc? मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब है. मतलब आप चाहिए तो 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब भी लिख सकते. बराबर है बच्चा? बराबर है? Yes, sir. तो बच्चे ये जो वॉल्यूम है आपको सबको पता है, इट इज वेरी स्मॉल. चलो ऐसा कुछ वॉल्यूम होगा, लेंथ होगा, ब्रेड्थ होगा, हाइट होगा. इनफैक्ट ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर. राइट? तो एंड ये जो वॉल्यूम बच्चा 1 cc, आपको क्या लगता है बड़ा वॉल्यूम है या एकदम छोटा सा वॉल्यूम? जल्दी बोलो बच्चा. ये छोटा वॉल्यूम volume बड़ा है. है कि कम है? मेरे हिसाब से तो ये एकदम स्मॉल है. सो आई वुड से इट इज वेरी स्मॉल. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बच्चा ये हम लोग जो सॉलिड कंडक्टर जिसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको हम लोग रूम टेम्परेचर पे रखेंगे. रूम टेम्परेचर. कोई बता पाएगा मेरे को रूम टेम्परेचर कितना होता है बच्चा? रूम टेम्परेचर यूजुअली इसको हम लोग 27 डिग्री सेल्सियस लेते हैं. नॉर्मल टेम्परेचर दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस. राइट? तो ऑब्वियस है जितना भी इसका अंदर एटम्स होगा वो हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा एंड इनसाइड देयर विल बी मेनी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ये जो रेड डॉट बना रहा हूं तो दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. राइट? और आपको मैंने बोला है ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एटम से बाहर है बट वो कंडक्टर का अंदर ही रहेगा. यू एग्री विद मी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एटम का बाहर है बट कंडक्टर का अंदर ही है. दे आर फ्री इनसाइड द कंडक्टर, दे विल नॉट कम आउट. राइट? सो इसका मतलब अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली रहेगा. नाउ इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इधर एन जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, सो इट इज अराउंड 10⁻25 टू, मतलब एक कंडक्टर का बात करूंगा तो ऑब्वियसली इट इज 10⁻25 से शुरू होगा. बट आप हर एक इंसुलेटर इसके लिए सब कंसिडरेशन में लेके चलेंगे. सॉरी मेटालिक कंडक्टर कंसिडर करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी अराउंड 10⁻25 टू 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम रहेगा. मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर क्यूब में इसका वैल्यू ऑब्वियसली 10⁻25, मतलब मीटर क्यूब बोलने का जरूरत नहीं है. तो आई थिंक वॉल्यूम तो फिक्स्ड है तो सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से किया तो वैल्यू 22 से
It will be around 29 free electrons होगा, free electrons. Is it okay? Yes, sir. अभी ये बताओ 10⁻²2 10⁻²29 एकदम स्मॉल वैल्यू है या बड़ा वैल्यू है? ये नंबर छोटा है कि बड़ा है बच्चा? वेरी बिग, राइट? Yes, sir. बच्चा 10⁻²22 10⁻²21 बड़ा नंबर है बच्चा, इट इज वेरी बिग नंबर, राइट? अभी जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है inside the conductor, they are moving with a certain velocity because of the temperature, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फ्री तो नहीं है, आई मीन स्टेशनरी नहीं है, मूव होते रहेगा. And believe me, at this temperature, they'll move with the velocity 10⁻⁵ meter per second. कितना बच्चे? 10⁻⁵ meter per second. ये जो वेलोसिटी है इसको हम लोग थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं. It is referred as thermal velocity. बच्चे ये वॉल्यूम, ये रूम टेम्परेचर, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑब्वियसली ये 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड, इसको हम लोग थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटी, राइट? एंड ये थर्मल वेलोसिटी भी कम नहीं है, 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड मतलब बहुत ज्यादा होता है, राइट? Yes, sir. अभी मेरे को बताओ बच्चा, इतना सारा इलेक्ट्रॉन्स इतना स्पीड से जाएगा, दैट टू इन दिस स्मॉल वॉल्यूम, डोंट यू थिंक इट शुड प्रोड्यूस करंट? अंदर करंट प्रोड्यूस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बच्चा? होना चाहिए। होना चाहिए, बट होता है क्या? नहीं. बच्चा करंट विल बी प्रोड्यूस्ड? सोचो बच्चा, करंट प्रोड्यूस होता है या नहीं होता है? बच्चे करंट कब प्रोड्यूस होगा? जब इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव होगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो इधर बताइए, इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव होता है क्या? बच्चा टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव होगा, सब डायरेक्शन में मूव होगा? जल्दी बोलो। सब डायरेक्शन में. सब डायरेक्शन में मूव होगा। इसका मतलब सपोज मैंने वी एवरेज निकाला, वी एवरेज, तो क्या रहेगा बच्चे वी एवरेज का वैल्यू? वेलोसिटी का एवरेज क्या आएगा? 0 आएगा ना, बिकॉज दे आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन बच्चा। यस और नो? Yes, sir. Yes, तो sir. जब एवरेज वेलोसिटी 0 है तो करंट जो है ऑब्वियसली क्या रहेगा बच्चा? 0, 0. राइट? तो इवन Yes, तो sir. आपके पास इतना सारा इलेक्ट्रॉन्स है और इतना स्पीड से जा रहा है, तो करंट बिल्कुल नहीं बनता है, क्योंकि आपका सपोज आप जिधर भी बैठे हो, सो ऑब्वियसली वो रूम है तो डेफिनेटली डोर होगा, डोर को एक लॉक होगा, लॉक मेटल से बनता होगा, और आप रूम टेम्परेचर का आसपास ही हो आपका टेम्परेचर। अच्छा, अभी वो लॉकर को आप जाके डोर लॉक करने वाला जो चीज मेटल से है ना, उसको टच किया तो आपको शॉक लगता है क्या? नहीं. नहीं No, लगता sir. है, नहीं लगता, मतलब करंट नहीं बन रहा नहीं। है, बट उसका अंदर उतना ही इलेक्ट्रॉन है जितना मैंने बोला है उसका यूनिट वॉल्यूम में, राइट? हाँ सर. Yes, sir. इसका मतलब करंट ऐसा ही नहीं बन सकता है बच्चा। करंट बनाना है तो आपको करंट इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा, एंड वो काम करने वाला जो एलिमेंट है या वो टर्म है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। यस और नो? Yes, Yes. sir. Yes, sir. So even though we have got free electrons, there is no current produced here. So there is no current produced. This is concept number 4, right? There is no current produced. Even though there are many free electrons. Many free electrons, because they are moving in, बोलो बच्चा क्या लिखूं मैं? They are moving in Random direction. Random. exactly Random direction. random directions, or I can write in all the possible direction, in
all the possible direction. Is it okay बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. मतलब करंट कब बनेगा? जब आप चार्ज को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ऑब्वियसली इधर तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेटली करंट नहीं बनेगा। इज इट ओके? Yes, sir. कंप्लीट करो बच्चे, sir. इसको कंप्लीट करो। बच्चों जो जो टर्म्स है लाइक कैपिटल वी वॉल्यूम है, रूम टेम्परेचर, देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स n है, vt थर्मल वेलोसिटी मैंने लिखा है, p एवरेज, वो सब लिखना है, बाद में कंफ्यूज नहीं होना है। राइट? जो बॉक्स में लिखा है वो जूल है क्या? जे जे बॉक्स में किधर है बच्चे? ये वाला, ये आई नेट है, आई करंट, जे नहीं है बच्चा, वो आई है, नेट करंट है, नेट करंट। ठीक है Yes, sir. बच्चे? देखो ये v एवरेज जीरो का मतलब क्या है? सपोज हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर गए तो 2 इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, तो अल्टीमेटली बैलेंस हो जाएगा। राइट? देन लेफ्ट में जितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा उतना ही राइट पे जाएगा, लाइक दैट। आफ्टर इन्फ्लुएंस पे जितना लेफ्ट पे जाता है उतना राइट पे जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, sir. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अप इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग डाउन। Number of electrons moving towards left will be exactly equal to number of electrons moving towards right in given time. So ultimately net velocity 0 होगा। बच्चा हो गया लिख के? Yes, हाँ sir. सर। बच्चा डोंट यू Yes, थिंक sir. आज जो हम लोग ने पढ़ा पूरा बेसिक्स था, मैंने कुछ आपको 11th का बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, बट सब बेसिक्स था।